class, so I have to take a hold. Am I clear to everyone? Yes, your voice is clear enough. Okay. Okay. So, hi. Good evening, everyone. So today we are here to discuss, or I'm here to just aware you all regarding Consumer Protection Act. I think you all are aware regarding the same. So, is there anyone here who can tell me what you understand by consumer? Who are consumers? And please, if anybody comfortable, switch on your cameras. Then we can, connect heart to heart, and then we will get it more. अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो आप लोग कैमरा ऑन करके बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई बात नहीं, आप लोग बताओ। Can I tell the definition of the consumer? Yeah, sure. Harvi, say. Yes, ma'am. The consumer is a person who actually will buy something or gets the service to fulfill his needs or the wants he wants from that product or the service. Okay. Okay. So, is there somewhere it is mentioned where this is Yes, mentioned? ma'am. In the Consumer Protection. Yes, ma'am. In the Consumer Protection Act. Yes. So, the section. Yeah, it's section 2 clause 7 of Consumer Protection Act 2019 actually. So you are definitely right. So let's begin with the Consumer Protection Act because only I have 1 hour in my hand and this act is very vast. So I will go by most important sections which talks about certain definitions regarding consumer protection, like who will be the complainant, like who will be the consumers, or what is unfair trade practices, what are malpractices, what is the definition of goods, and what is how we make a consumer protection authority, a councils, and then this redressals, how these all things are formed. So we will read one by one here. So basically, let's begin with the section which talks about the definitions. So before that, we will know about when this Consumer Protection Act 2019 came into existence and why Consumer Protection Act 1986 got repealed. Anyone is here who can tell me what is Consumer Protection Act 1986? Have you heard about this act earlier? So basically, before 2019 amendment, there were Consumer Protection Act 1986, which also talks about the rights of the consumers, but there were many loopholes due to which this Consumer Protection Act 2019 came into existence. So the Consumer Protection Act 2019 came into existence on 20th July 2020 and the president given the accent on 9th of February 2019. So these two dates are very important and if you can write it down then pen it down somewhere because these are the sections or whatever I am briefing here will be very important if someone is preparing for judicial service examination. So यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मैं चीजें आपको बताऊंगी from the point of view of प्रिलिमिनरी जो हमारे एग्जाम्स होते हैं जुडिशियल सर्विस के जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आता है या अगर कोई यहाँ पे नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहता है आफ्टर मास्टर्स तो वो चीजें यहाँ पे आपको हेल्प करेगी। तो पहला जो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रोविजंस है वो बात करता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता क्या है, इसमें जितनी भी अथॉरिटीज हैं जो काउंसिल्स हैं वो कैसे बनती है, इसमें जो भी प्रेसिडेंट है या चेयरमैन है उनकी अथॉरिटी किनके पास होती है उनको नियुक्त करने की, और फिर जो रेड्रेशल काउंसिल एक फॉर्म होता है वो किनको राइट है फॉर्म करने का, और जो कंज्यूमर के साथ कोई भी डिस्प्यूट होता है या उनके साथ कोई भी फ्रॉड होता है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होते हैं तो वो कहाँ पे ग्रीवेंसेस के लिए जाएंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का बहुत बड़ा रोल है to protect the rights of the consumers or to protect the rights of the customers.
आप लोग ने कभी ये सोचा है कि ये एग्जिस्टेंस में क्यों आया? बिकॉज 1986 तो पहले से ऑलरेडी था ना, तो उसको रिवील करके 2019 लाने का क्या मकसद था? कभी ये क्वेश्चन आया आप लोग के दिमाग में? अगर आपको थोड़ा भी अगर आपने पढ़ा है तो is there anyone from the semesters who already like read this consumer protection act as a whole? पढ़ रखा है आप लोगों ने? चलो ये पढ़ाने से पहले ना मुझे एक बार अपना इंट्रोडक्शन दो। जितने बच्चे हो यहाँ पे 12 लोग मुझे दिख रहे हो, जस्ट गिव यू लाइक आई ब्रेक करते हैं। आप लोग बताओ आप लोग किस किस सेमेस्टर्स में हो? आई जस्ट वांट टू नो। सो वानी, दीक्षा, तोशिबा, लक्षिता, धारवी, प्लीज इंट्रो योरसेल्फ। आपका कॉलेज क्या है एंड आप किस सेमेस्टर्स में हो बिफोर बिगिनिंग विद दिस टॉपिक? क्योंकि मैं या गुड इवनिंग। I am currently I just went into the fifth semester. I'm a third year student and I am pursuing my graduation BB LLB honors from NMIMS University, Mumbai. Okay. In the first semester, we just have a little bit brief idea about the Consumer Protection Act. We did not dealt with it in depth because it was not a subject for us. It will come in our coming semesters. Okay. So next one, just do it very quick and give me 60 seconds brief introduction. Just I want to know everybody. तो मेरे को समझाने में आप लोगों को थोड़ी आसानी होगी कि मुझे क्या बताना है, कैसे बताना है। स्वाति, आश्रया, please give your intro. Good afternoon, ma'am. I am Venkatagiri Kausurao from Telangana. I have graduated from a BTech college and now I am doing 3YDC in Maner Law College, Khammam. It's affiliated to Kakatiya University. Completed second year, first semester. Now I am in second semester, ma'am. I haven't no idea about Consumer Protection Act because till now there is no lesson or topic related to Consumer Protection Act. Maybe it will come in upcoming semesters. What about others? Are you people are not comfortable in giving introductions? नहीं, बस ये आइस ब्रेक कर रही हूँ कि हम लोग एक दूसरे को जान पाए इन अ वेरी सिंपल वे और मैं चीजों को उस तरीके से आपको समझा पाऊँ बिकॉज ये बहुत एग्जॉस्टिव है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 107 सेक्शंस हैं और 1 घंटे में 10 सेक्शंस टीच करना इज नॉट अ वेरी बहुत टफ टास्क होता है 1 घंटे में 107 सेक्शन कवर करना। इफ आई विल कम टू नो कि आप लोग किस किस सेमेस्टर से बिलोंग करते हो तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा आपको किस तरीके से मुझे ब्रीफ करना है। Good afternoon, ma'am. Yeah. My name is Vani and I am currently pursuing second semester. I will be going in third semester because I'm giving my externals right now. I did study a little bit about Consumer Protection Act. I'm aware of e-consumers and consumers, goods and services. And if I'm not wrong, I think the articles, the sections for the same is section 2.7 and 2.14. And section 21 and 42 for the same. I'm just not very sure of the bifurcation. It's okay. तो कोई बात नहीं है. Let's stop here because मुझे लगता है कि आप लोग comfortable नहीं हो intro देने में. But ये एक वे होता है. अगर आपको कभी कोई टीचर ऐसे पढ़ाता है ना, because we are not in a physical mode, we are in a online mode. तो ice breaking एक बहुत बड़ा role play करता है. That's the reason I asked you to turn on your cameras. आप किसी भी हालत में it's okay. We are here to discuss things ना. तो फिर चीजें बहुत स्मूथली कैरी होती है। अगर हम फिजिकल प्रेजेंस जहाँ पे होता है वहाँ पे चीजें और इंटरेक्टिव हो जाती है। तो जब भी आप वीसी पे हो, एक तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम वीडियो कॉल पे कहीं भी बैठ के कहीं पे क्लास ले रहे हैं, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो कोई नहीं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो इट्स ओके। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक और मैं आपको बहुत आई एम हियर टू टीच यू अ वेरी स्पेसिफिक प्रोविजंस रिगार्डिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो आपको आपके कमिंग एग्जाम में इट विल हेल्प यू। So, first of all, we came to know when this Consumer Protection Act came into existence. So, Consumer Protection Act 2019 came into existence on 28th of July 2020. And secondly, when the President has given the assent, so President has given their assent on 9th of August 2019. These 2 dates are very important for every kind of competitive exams if you're going to face in future
coming futures like judicial services or masters or for net JRF. So now let's come to the definition part. So definition part is in section 2. Section 2 clause 1 of the definition part talks about advertisement. What is advertisement? Advertisement here, as per Consumer Protection Act 2019, means any audio or visual publicity, representations, endorsement or pronouncement made by means of light, sound, smoke, gas, print, electronic media, and etc. It's a very simple language. Advertisement means what? To advertise yourself, to advertise your product. Like if I'm a teacher here, I am teaching you. So first of all, how I will attract you as my customers? Like here I am a seller, you are a customer, and here I am selling my education or way of teaching. So how will I attract you? So I have to advertise myself. I have to give you a demo class, to attract my consumers. Like for example, students are my consumer. Here I am a seller, teacher or a seller, and I am selling here education. I am just give you as an example, not take it as otherwise. So here, what advertisement I will do here? So here my advertisement is I will give you a glimpse of or an extra class or in a kind of demo class like the way of my teaching. So here I'm advertising myself by way of sound, by way of putting my banners or hoarding all where in the towns, like join MV Bhamini's law classes, follow net JRF. So this is a way of advertising yourself. So there are many modes of advertisement as per Consumer Protection Act. So the first type of advertisement is like visual publicity, by putting representations, endorsement. Endorsement means, by putting my banners or hoardings and then publicize. Yeah, she's a teacher, she's teaching law for net JRF. Please join her, take a demo class. So this is the definition of advertisement as per section 2 clause 1. Next, we will go by 2 clause 5, which talks about complainant. Who will be the complainant here? अब मान लो, if you people are comfortable in bilingual language, then I will go with Hindi and English both, because I think यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जिनको English और हिंदी में ज़्यादा comfortable होगा. So here is 2 clause 5 which talks about complainant. Complainant का मतलब होता है कि कौन सा व्यक्ति अगर अप्रोच करेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, मतलब अपने राइट्स के लिए कौन कहाँ पे अप्रोच करेगा, कौन कंप्लेनेंट होगा. तो यहाँ पे कौन कौन व्यक्ति जिसके साथ कुछ भी गलत हुआ है या फ्रॉड हुआ है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, तो वो व्यक्ति जो है कौन होगा जो अप्रोच करेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिट्रेसल फोरम में या फिर काउंसिल को. तो यहाँ पे पहला तो वो कंज्यूमर होगा, मतलब वो व्यक्ति क्या होना चाहिए? ही शुड बी अ कंज्यूमर और एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द लॉ. और इसमें कंज्यूमर में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी आएंगी. देन एक से ज्यादा कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, नॉट ओनली वन कंज्यूमर. अगर सेम राइट्स किसी और लोगों की भी अफेक्ट हुई है, वो लोग मिलके कंज्यूमर कोर्ट में अपने केस को फाइल कर सकते हैं. सो दे विल आल्सो फॉल इन द एम्बिट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. और इफ I am a person who has been breached by the law on certain goods. मैंने for example, I went to a shopkeeper and asked him to give me a beer bottle, right? और उस beer bottle में मुझे snail मिल गया. अब यहाँ पे मैं किसको अप्रोच करूंगी? मैं किसको कहूंगी कि मुझे कॉम्पनसेशन दो? अगर मैं उस शॉपकीपर के पास जाऊंगी तो वो बोलेगा कि मैं तो बस एक रिटेलर हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ, आपको तो ये तो मैन्युफैक्चरर का काम है, मैन्युफैक्चरर ने बनाया है तो वो उसकी लायबिलिटी लेता है. तो एज अ कस्टमर यहाँ पे मेरा राइट है कि मैं कॉम्पनसेशन उस रिटेलर से भी या जिंजर बियर केस. थैंक यू दिशा. जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जांपल, डोंट गो इनटू द टेक्निकलिटीज. बस मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रही हूँ फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो अब एज अ कंज्यूमर मैं किसके पास अप्रोच करूंगी? तो आई हैव अथॉरिटी टू अप्रोच ईदर कि मैं मैन्युफैक्चरर को भी सू करूं या तो मैं रिटेलर को भी सू करूं. और यहाँ पे मैन्युफैक्चरर भी लायबल होगा और रिटेलर भी लायबल होगा, क्योंकि रिटेलर यहाँ पे चीजें बेच रहा है, तो ही शुड आल्सो बी केयरफुल रिगार्डिंग द स्टफ ही इज सेलिंग, राइट? तो ये चीजें आ जाती है. और यहाँ पे क्या है कि अगर
मैं मर गई, फॉर एग्जाम्पल इफ कंज्यूमर, फॉर एग्जाम्पल उसमें मैं कंज्यूमर थी, मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो मेरे एयर्स होंगे, वो सू कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर को और रिटेलर को फॉर द कॉम्पनसेशन, तो वो भी इसके एम्बिट में आएंगे। और मान लो मैं माइनर हूँ, लाइक आई एम बिलो 18 इयर्स ऑफ एज, तो मेरे जो गार्डियन हैं या मेरे पेरेंट्स हैं वो भी सू कर सकते हैं अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। So here complainant will be these all persons mentioned under section 2 clause 5 of Consumer Protection Act. Now who will be the complainant? अब complainant कौन होगा? अब complain कौन कर सकता है? तो अब complain कैसे होगी? मान लो मेरे साथ कुछ मतलब खराबी हुई है, मेरे साथ किसी ने ब्रीच किया है, मेरे साथ किसी ने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किया है, तो मैं कैसे कंप्लेन करूंगी किसी को? तो आई शुड ईदर गिव द कंप्लेन इन राइटिंग, या तो मैं लिखित में दूंगी या तो फिर मैं जाके डायरेक्टली उसको सू करूंगी। ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं कैसे कंप्लेन करूंगी। सो इट इज मेंशन अंडर सेक्शन 2 clause 6 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सो आई थिंक देखो डेफिनेशंस तो आप कर लोगे, लेट्स गो टू द मेन लूप होल जहाँ पे लोग थोड़े कंफ्यूज होते हैं, जो इसकी काउंसिल्स का जो फॉर्मेशन होता है और उस काउंसिल्स में कौन कौन होंगे। Mohammed Shahil asked me one question. What is your question, Mohammed? Toshibaya asked question. Ma'am, my question is that whether customer also come under the ambit of the definition of consumer, because customer and consumer both are two different things. And if we talk about legality of consumer, so he will be the one who has consumed something or has taken the service. So ma'am, what happened that I purchase a thing and I give it to someone else, and the third person has consumed it. So now he technically has the right to sue whom, to the customer or to the retailer, or by the customer here the middle party has any kind of legal right or any legal approach. Are they customer And your voice is not audible. Am I audible? Yeah, now you're audible. So what is a very thin line difference between a customer and a consumer? Okay. The thin line difference, the consumer is the end user of a product or a service, and the customer is the one who purchases. कंज्यूम कौन करेगा? जो कंज्यूम करेगा ना। ऐसे प्रैक्टिकलिटी में जाओ, आप इतना लूप में There is a voice break in your. Yeah, actually there is voice breaking. not audible. You are audible, but your voice is breaking. अब इसका लैग कर रहा है? No ma'am. यस मैम लैग कर रहा है। अच्छा अभी भी लैग कर रहा है? Yes ma'am. अभी ना Ma'am, not hello. Try to reconnect ma'am. It's all. Now I'm audible. Yes ma'am. Now voice is clear. Yeah ma'am. Yes, crystal clear. yes it is. Thank you. So where is she? I can't see her. So will you please Yes, tell me ma'am. the हाँ, so Toshiba. So देखो क्या होता है ना, कस्टमर और कंज्यूमर में बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है। कस्टमर बेसिकली कंज्यूम, हम लोग ऐसे कैसे मान लें कि जो कस्टमर है वो कंज्यूम नहीं करेगा। बेसिकली जो कस्टमर है वो शॉप पे गया, उसने कुछ मांगा, ठीक है, मान लो उसने खरीदा, उसको कंज्यूम किसी और ने करा, लेकिन यहाँ पे कंज्यूम किसके थ्रू हुआ? कस्टमर के थ्रू ही हुआ ना। तो यहाँ पे अगर कंज्यूमर को कुछ होता है तो कस्टमर के पास राइट है, सोल राइट है सू करने का, रिटेलर को भी और मैन्युफैक्चरर को भी। क्योंकि देखो मैन्युफैक्चरर ने बनाया, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को ध्यान रखना था बहुत अच्छे से कि अगर आप कोई भी चीज ऐसा बना रहे हो तो आप अपने तरीके
से उस चीज में 110% आप नेग्लिजेंस देखोगे, कहीं आपसे कोई नेग्लिजेंस तो नहीं हो गया, आप उसका ड्यू केयर करो, राइट। और जब वो रिटेल करता है, किसी शॉप को देता है कि आप इसको बेचो, तो ये रिटेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको कंफर्म करना कि कुछ खराबी तो नहीं है इसमें, अगर है तो रिटेलर विल बी ऑल्सो लाइबल। लेकिन जिंजर बियर बॉटल में जो केस था वो एक थोड़ा डिफरेंट केस है, उसमें रिटेलर का ये कंटेंशन था कि देखो मैं तो उसको खोल के नहीं देख रहा हूँ ना, मैं उस बॉटल को खोल के तो नहीं देख रहा हूँ, तो मैं मुझे कैसे पता था कि उसमें मरा हुआ स्नेल पड़ा हुआ है, अ डेड स्नेल इज इनसाइड दैट बॉटल। तो उसने ये कंटेंशन दिया, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को बस लाइबल किया गया था, रिटेलर को लाइबल नहीं किया गया था। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या है कि अगर आप कोई भी सामान रिटेलर के थ्रू लेते हो, तो रिटेलर का भी ड्यू केयर होता है चीजों को लेके कि आप जो भी चीजें आगे ट्रांसफर कर रहे हो, आप पूरा पूरा ख्याल रखोगे अपने कस्टमर का। अगर आपका कस्टमर किसी तरीके से मतलब किसी भी वे में अगर उसको कोई नुकसान होता है, तो रिटेलर हैव टू पे कॉम्पनसेशन ऑन दैट। सो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बनाने का मेन मोटो ही है कि हमें कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, कंज्यूमर को उसके राइट्स को लेके अवेयर करना है, और कंज्यूमर को वो सारी प्रोटेक्शंस देनी है फॉर विच ही इज लाइबल और फॉर विच ही हैज राइट टू नो। तो अगर कोई कंज्यूमर, इफ एनी कंज्यूमर go to a shop to buy a packet of a kurkure, then it is the duty of a consumer also to look like there is expiry on that product or not, it is mentioned or not. And if there is a expiry on that product, then the consumer has the right to refuse to purchase that kurkure packet. But if consumer can't refuse and still purchase the packet, then here the retailer will not be responsible for that, because there is a maxim, let the buyer be aware. Okay, बेटा। आपको पता होगा ना कि ये एक हाँ, मैक्सिम है ठीक कि है। buyer को, हाँ जी। तो अगर यहाँ पे उस पैकेट पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ये 20 तारीख को ये कुरकुरे का पैकेट एक्सपायर हो रहा है, फिर भी उस व्यक्ति ने उस कुरकुरे के पैकेट को खरीद लिया, देखते हुए उसने उसको खरीदा है, तो यहाँ पे उसकी लाइबिलिटी बनती है, रिटेलर की लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल साफ दिख रहा है यहाँ पे और रिटेलर को बताने की भी जरूरत नहीं। तो कुछ चीजों में रिटेलर को एग्जम्प्ट किया गया है। देयर आर सर्टेन केसेस इन व्हिच द रिटेलर हैज बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम देयर ड्यूटी, वेयर ड्यूटी इज ऑन द कस्टमर और ऑन अ कंज्यूमर टू लुक आफ्टर, लाइक लेट द बायर बी अवेयर। दिस इज अ वेरी प्रॉपर मैगजीन जो आप लोग टॉर्ट्स में भी पढ़ोगे, कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ोगे, सोगा में पढ़ोगे, और अभी आप लोग कंज्यूमर एक्ट में भी पढ़ोगे। सो से एनी क्वेश्चन? No, ma'am. Ma'am, like you said, we can sue retailer. I have a doubt now. Now today online platforms are very widespreading, and we can order anything from online app like groceries or anything. So we ordered a grocery. For example, we ordered some grocery, and that is delivered by a delivery boy, and delivery boy pick up that grocery item from the store, right? In Geo store, if we order anything, directly delivery boy goes through the store and he pick up some items and carry with him, and that will be delivered to us. Now, my question is, can we sue delivery boy like we sued a retailer? बच्चे लिसन, here delivery boy is not a retailer for like, वो एक थर्ड पार्टी है, he is a third party जिसका बस एक ही ड्यूटी है to hand over the product जो उसको शॉप से मिला है। यहाँ पे liability is only on the shop from where you have ordered or on the platform or off the platform जहाँ से आपने ऑर्डर करा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने स्विगी मार्ट से कुछ ऑर्डर करा, राइट? Am I getting you right? मेरे को करेक्ट करना। For example, you have ordered a packet of a rice from a Swiggy Mart. Here, Swiggy Mart is an online platform, a third party here. So, and you have ordered that rice from a shop somewhere, जो mention था आपके Swiggy Mart पे, और अब वो rice आपको expiry मिल गया. Now here, you can ask third party to give you compensation. And now third party will ask manufacturer or those shops who are consuming those packets of rice to pay you compensation. And if that shop will not pay you compensation, then the third party Swiggy will pay you the compensation or return your product on behalf. But in meanwhile,
आपका क्वेश्चन यही था ना कि डिलीवरी बॉय बेचारा उसका क्या काम है यार, वो तो अपना काम कर रहा है, उसको 10-20 रुपए मिल रहे हैं पर डिलीवरी का. He is not liable at all here because he is an outsider. His only responsibility is to Yes, hand ma'am, over he is the an job. outsider. But here, what my question is, it's an open mart. We think just it is an open mart. Nowadays, Instamart is very famous, and Geo Marts are also famous. Where their customers won't directly go, or their manager or some other, they're not available to pack it. Directly, delivery boy goes and collect the items there. Their all items are arranged there, and he will collect. You say that he is not responsible by selecting an expired item. Sorry, will you please repeat? Yeah, ma'am. There is an open store. A delivery boy can go through the store and he can pick up the item. He can pick expired item or any other item he can pick which are available there. Then he picked a wrong item. Instead of giving a good item, he picked a wrong item, an expired item, and delivered to the customer. Then delivery boy can also be sued, right, ma'am? It's not a food packet or other thing. I am saying it's an same as No, no. In all these cases, na, have you ever heard of the case like where anybody sued delivery boy? कभी सुना है कि किसी ने डिलीवरी बॉय को सू करा है? जोमेटो में खाना खराब आया, डिलीवरी बॉय लेके आया होगा गलत खाना. नहीं, we sue to the restaurant or we sue or we ask compensation from Zomato, right? हम डिलीवरी बॉय को नहीं कहते. तो देखो, डिलीवरी बॉय हमारी चीजों को हमें एक्सेस कराता है, विजिबली एक्सेस कराता है. और अगर हम उनकी गलतियों के लिए उनको सू करने लगे तो फिर तो भाई उनके साथ नाइंसाफी होगी ना. तो हम उनको यहाँ से एग्जाम्प्ट करते हैं. कंज्यूमर एक्ट ये बोलता है कि कंज्यूमर और रिटेलर का डायरेक्ट कनेक्शन होगा, कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर का डायरेक्ट कनेक्शन होगा. कोई भी प्रोडक्ट में अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, कोई आपसे ज्यादा दाम दे रहा है या आपको एक्सपायरी प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचा रहा है, तो यहाँ पे उस पहुंचाने वाले की गलती नहीं है. जिसने एक्सपायरी प्रोडक्ट रखा था उसकी गलती है. तो किसने रखा था? द शॉप जिसने इस प्रोडक्ट को रखा था. उससे नुकसान किसका हुआ? द कंज्यूमर, द कस्टमर हु बाय दोस प्रोडक्ट्स. आर यू गेटिंग इट? yes, ma'am. देखो, But ये क्वेश्चंस आते हैं, आपके क्वेश्चंस इज वेरी जेन्युइन, बट टेक इट ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि ये जो डिलीवरी बॉयज है ना, दे विल नेवर बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर दैट बिकॉज दे आर जस्ट डूइंग देयर जॉब. दे आर आउटसाइडर्स, दे आर थर्ड पार्टी आउटसाइडर्स. वे थर्ड पार्टी भी नहीं है, वो बस एक काम कर रहा है आपकी चीजों को आप तक पहुंचाने का. उसकी यहाँ पे कोई भूमिका ही नहीं है. He plays no role on your items. Are they expired और दो उसने उस शॉप में जाके अपने से पिक करा. वो गलती इंसान है, हो सकती है, लेकिन गलती यहाँ पे शॉपकीपर की है. उसने उस एक्सपायर आइटम को रखा क्यों? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? yes, ma'am. But if company defended like we have separated expiry items and good items, but delivery boy with confusion after we are giving training, he confused and he brought it to the consumer after eating consumed by the persons. So that is not our responsibility. It is responsibility of delivery boy to look after the item. Then company can defend like that, ma'am. In which year you are? I am at second year. So I can get it the way you are asking me ना. मुझे पता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं माइंड पे, बट बच्चा ऐसा कुछ नहीं होता. देखो, द थिंग इज डिलीवरी, ये समझ लो, लॉ में अगर हम किसी को एग्जाम्पशन देते हैं कुछ सोच समझ के ही देते हैं. ऐसे तो फिर all those manufacturers and all those retailers will put their contention like there is no my fault. There is no fault from my side. It's all about delivery boy. भाई डिलीवरी बॉय इज अ पुअर गाय. वो इसकी नौकरी क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको 10 पैसे चाहिए ना. अगर आप हर चीज उसके ऊपर ही थोप दोगे फिर तो यहाँ पे रिटेलर और मैन्युफैक्चरर का कोई रोल ही नहीं होता है. तो ऐसे कंटेंट्स को कोर्ट क्या करती है? डिसमिस करती है, खारिज कर देती है. यू विल बी द सोल रिस्पांसिबल. दैट्स इट. So now can we go on other topic? आपका confusion clear हुआ? Yes, ma'am. I'm just asking like a different someone different like this means how we should proceed. If someone defend like this, na, so there are judges who will say shut your mouth up and just give compensation to your customer. There is no role of delivery guy in your product manufacturer or the product you are keeping as an expiry here. Delivery boy's only role to hand over the product to your retailer. कंपनी बोलता है कि हम ट्रेनिंग दिया है, उसका एक्सपायरी ये है, ये वो नहीं निकालना, वो एक्सपायर्ड है, वो सब ट्रेनिंग दिया वो बोलता है कंपनी. कंपनी ट्रेनिंग दिया उसको, आई गेट इट, बट
वहां पे उसकी गलती नहीं है, गलती से पैकेट उठाया ना, तो यहाँ पे whose fault? Why you kept that expiry product in your shop? ये मेरा क्वेश्चन है। जज ये पूछेंगे ना कि why you put those expiry product on your shop? You should not put that expiry product on your shop. They say that before we throw it in garbage or before we taking it in back to us, what we do is we just segregate the items. Which are good items we will segregate, and which are bad items we will segregate. And we also give training to the people. Wait. Then what? Then he has to prove his point कि मेरी गलती नहीं थी। Simple. तो डिलीवरी बॉय भी रिटेलर जैसा लेबल हो सकता है नहीं, रिटेलर देखो, रिटेलर लाइबल होगा, रिटेलर हर चीज के लिए लाइबल होगा, मैन्युफैक्चरर भी होगा, लेकिन डिलीवरी बॉय लाइबल नहीं होगा। दो फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर रिटेलर क्या करेगा कि उसकी गलती के लिए उसकी सैलरी काट सकता है बस। इधर हम क्या बोलेंगे कि ये डिलीवरी बॉय ही रिटेलर का पोजीशन लिया है इधर, क्योंकि वो ही पिक कर लिया। और don't confuse it, because there are many people here who will confuse होंगे। Delivery boy will never play a role of a retailer. Delivery boy has only one role, to bring your product, to hand over the product to the customer. No more role apart from this. The only role to deliver the product to the retailer, to the customer, from retailer shop or from the shop of the manufacturer. That's it. अगर retailer की गलती है इसमें, तो manufacturer या अगर डिलीवरी बॉय की गलती है इसमें, गलत से उसने कोई और प्रोडक्ट उठा लिया, तो यहाँ पे तो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर will just cut off his salary, but the compensation always be paid from the side of a manufacturer and retailer. Mark my word, and this is the law. yes, Have I make your confusion clear? yes ma'am, I am just thinking that is there any other differences that company can give? सुनो, हमारे पास आधा घंटा बचा है, and I have to also teach you the forums, district forums, state forums and national forums. तो ये पढ़ लो एक बार, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है? ठीक है, चलो अब लेट्स टॉक अबाउट, पहले 3 काउंसिल्स का एस्टैब्लिशमेंट होता है। सो फर्स्ट काउंसिल इज ऑल अबाउट Central Consumer Protection Council, which is enshrined under Section 3 of Consumer Protection Act 2019. मैं बताऊंगी आपको कि इसमें पहले वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 के हैं, वो कैसे डिफरेंट है नए वाले से। तो अब क्या होता है कि ये अथॉरिटी, ये जो प्रोटेक्शन काउंसिल बनाई गई है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, इसमें एक प्रेसिडेंट होता है और इसमें कुछ मिनिस्टर्स होते हैं, राइट? अब ये जो प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स होते हैं, इनका काम क्या होता है? ओनली टू एडवाइज एंड प्रमोट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आपको एडवाइज करना है और प्रमोट करना है अपने एक्ट को, लोगों को अवेयर करना है उनके राइट्स को। दैट्स इट, इसका बस यही रोल है और आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना। द वन थिंग विच इज टू रिमेंबर इन दिस सेक्शन, प्रत्येक साल एवरी ईयर यू शुड कंडक्ट वन मीटिंग regarding this. So mark this also, under Central Consumer Protection Council there is a requirement to be held one meeting for every year. Next come to section 6, which talks about State Consumer Protection Councils. इसका भी मेन रोल वही होता है, सेम ये स्टेट में बनती है, like every state their own State Consumer Protection Councils, जो एडवाइस और प्रमोट करते हैं अपने कंज्यूमर्स एक्ट को, और उनके एडवर्टीजमेंट में ये मदद करते हैं, उनकी अवेयरनेस में ये मदद करते हैं। इसमें भी सेम एक मिनिस्टर इन चार्ज होता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का कंज्यूमर अफेयर्स में वो उस पोजीशन पे वो क्या कहते हैं उसको, उस पोजीशन को होल्ड करता है स्टेट में, और अदर्स ऑफिसर्स होते हैं। इस एक्ट के अंदर स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के अंदर 2 मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर शुड बी हेल्ड 2 मीटिंग इन एवरी 1 ईयर। 2 मीटिंग होनी जरूरी है। डिफरेंस समझ में आया? सेंट्रल में 1 मीटिंग जरूरी थी, स्टेट में 2 मीटिंग इज इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू कंज्यूमर फोरम। अपन पढ़ेंगे आप बेसिकली कंज्यूमर फोरम, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इसमें जो है, हम अगर ये एक और चीज जो मैंने मिस कर दिया वो है
डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, सेम है वो भी, मतलब जैसे जो काउंसिल वहाँ पे सेंट्रल में काम करती है, स्टेट में काम करती है, वैसे डिस्ट्रिक्ट में भी काम होता है एज इट इज। इसमें भी, पर डिस्ट्रिक्ट में भी 2 मीटिंग्स इज इम्पोर्टेंट इन एवरी 1 ईयर टू प्रमोट और टू एडवाइस देयर कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन काउंसिल्स और टू प्रमोट देयर कस्टमर्स राइट्स, कि लोग अपने राइट्स को लेके अवेयर हो। यू आर गेटिंग इट? सबको समझ आ रहा है कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट हो रही हूँ? देखो क्योंकि टाइम नहीं है और मुझे चीजें थोड़ी कवर करनी है। एवरीबडी इज गेटिंग इट? और एनी क्वेश्चंस तो बोलो, मैं हिंदी में और अच्छे से समझा दूंगी इसको। समझ पा रहा ओके, थैंक यू सो मच। तो अब हम लोग 3 बेसिक चीज की बात करेंगे। वो था, हमने जो बात करा वो काउंसिल था। काउंसिल का काम बस होता है प्रमोट करना, एडवाइस करना, और वो काउंसिल की 3 हायरार्की है। एक सेंट्रल में बनती है, एक स्टेट में बनती है, और तीसरी डिस्ट्रिक्ट में बनती है। वैसे ही कंज्यूमर फोरम्स होते हैं जहाँ पे आप कंप्लेन रजिस्टर करते हो। आपने सुना होगा ना, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम और नेशनल कमीशन, आपने सुना है ये सब चीजें। अब ये डिविजन्स jurisdictions बेसिस पे होते हैं। This divisions is based on jurisdictions, and that jurisdiction is all about on Monetary, na? hello. The jurisdiction is divided on the basis of monetary, na? What is the amount of the goods and services you have taken? Yeah. Jurisdictions is all about the monetary basis. कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में अगर हम डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाते हैं तो वहाँ पे कितने करोड़ या कितने हजार या कितने लाख का केस जाएगा, या फिर अगर हम स्टेट में आते हैं तो कितने करोड़ कितने लाख रुपए का अगर मेरे साथ घोटाला हुआ है या फिर किसी ने मेरे साथ फ्रॉड करा है तो वो किस एम्बिट में आएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट फोरम की बात करते हैं। तो बेसिकली हियर कोई मुझे बता सकता है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम का क्या है? Ma'am, I think its last capital is 50 lakh. ये 1986 में था बच्चे, यही तो चीज थी, तो मुझे आपको कंपैरेटिवली बताना था। Okay. Then I don't know. हाँ, वेट, आई एम हियर टू आपको 1 crore rupees। हाँ, देख के आया ना, अभी आप देख के आए हो ना? नो मैम। चलो कोई बात नहीं, बट आई एम हैप्पी कि आप मुझे बता रहे हो। सो पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम की, जो सेक्शन 28 में मेंशन है, जिसमें कि स्टेप, सॉरी, just give me a moment, just give me a moment. Just give me a moment, just give me a moment. Actually, I am shifting my place. I am somewhere, मैंने बताया था ना मैं कहीं पे मैं रुकी हुई हूँ। Just wait, Thank you so much. Thank you. Sorry, so sorry. So now let's discuss about district forum under section 28. तो उसमें पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम की एस्टेब्लिशमेंट को पढ़ते हैं, जो सेक्शन 28 में बोला गया है, जिसमें कि प्रेसिडेंट होगा। और कंपैरेटिवली मैं बताते जाती हूँ आपको। 2019 में जो ये एक्ट आया, इसमें ये नहीं बोला गया कि जो डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो प्रेसिडेंट होगा या जो मेंबर होंगे वो कौन होंगे, लेकिन 1986 वाले एक्ट में ये बोला जाता था कि जो भी डिस्ट्रिक्ट फोरम के प्रेसिडेंट होंगे, ही शुड बी अ जज। पता है आप लोगों को ये चीज, ये डिफरेंस पता है? तो व्हेन यू विल गो बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो यू विल गेट दिस डिफरेंस। उस समय ये स्पेसिफिक मेंशन था हु विल बी द प्रेसिडेंट, बट जब न्यू लॉ आया यहाँ पे हमारे एग्जिस्टेंस में आया 2019 के, तो इसमें जो प्रेसिडेंट का जो रोल है, हु विल बी द प्रेसिडेंट, को कहीं डिफाइन नहीं किया गया। दे जस्ट सेड देयर विल बी वन प्रेसिडेंट इन डिस्ट्रिक्ट फोरम and there will be a 2 member, not less than 2 member, who will look after the cases and everything. Now section 34 talks about jurisdiction of civil forum, जिसमें ये बोला गया
कि हमारे सिविल फोरम में जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है उसमें कितने रुपए तक के केसेस को लिया जाएगा। 1986 में क्या था कि हम 20 लाख से कम के जितने मैटर्स थे ना, नॉट एक्सीडिंग 20 lakhs, लेस देन 20 lakhs, उनके जितने भी मैटर्स थे वो हम डिस्ट्रिक्ट फोरम में देखते थे। लेकिन 1986 में 2019 वाला एक्ट में ये बोला गया कि अप टू 1 करोड़ जितने भी मैटर 1 करोड़ के नीचे तक के हैं वो सारे मैटर को डिस्ट्रिक्ट फोरम डील करेगा। यू आर गेटिंग द डिफरेंस? Yes, ma'am. Yes. तो मॉनेटरी यहाँ पे क्लॉज हुआ कि 1986 वाले में देयर शुड बी एमबी ऑफ 20 लाख up to 20 lakh, but in 2019 up to 1 crore the jurisdiction for monetary you can approach to district forum, right? Now we should talk about state commission forum, जिसमें कि इसमें भी एक प्रेसिडेंट होगा और not more than 4 members under state commission। जब आप जाते हो there will be one president, and again who will be the president is not specifically mentioned over here, but they also mention one thing, there should be member which should not increase more than 4। there will be member जो 4 से कम रखो, आप 4 भी रखो लेकिन 4 से ज्यादा नहीं बढ़ने चाहिए। अब जब हम 1986 का पढ़ते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो उसमें हमें ये बोला जाता है हाई कोर्ट के जो जज होते थे ना, दे विल बी द प्रेसिडेंट ओवर हियर, बट अगेन दे हैव नॉट मेंशन एनी स्पेसिफिक पॉइंट रिगार्डिंग हु विल बी द प्रेसिडेंट 2019 वाला एक्ट। सो ये कुछ कंपैरेटिवली मैं जो आपको बता रही हूँ कि 2019 के एक्ट में क्या चीजें ऐड करी उन्होंने और क्या हटाया, और क्या 1986 वाले एक्ट में जो चीजें कुछ अच्छी थी वो इसमें नहीं लेके आया इन लोगों ने। तो हाई कोर्ट के जो जज होते थे ना, they will be a presiding officer or they will be the president of a state forum, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट कोई भी हो सकता है और 4 से कम मेंबर होने चाहिए या 4 मेंबर होने चाहिए। अब जुरिस्डिक्शन देखते हैं कि कितनी मॉनेटरी तक हम स्टेट फोरम में अप्रोच कर सकते हैं। सो हियर मॉनेटरी क्लॉज इज ऑल अबाउट 10 करोड़ अप टू 10 करोड़, फ्रॉम 1 करोड़ टू 10 करोड़। ये इनका एक मार्जिन था कि अगर कोई लॉस अगर आपको हुआ है, आपके साथ किसी ने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करी है, आपके साथ किसी ने फ्रॉड करा है, आपको किसी ने कोई ऐसा गुड सप्लाई किया है जिसका की रिटेल प्राइस जो मार्केट प्राइस है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में लाई करता है, देन यू कैन डायरेक्टली गो एंड फाइल अ कंप्लेंट इन स्टेट फोरम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Then again come to 1986 वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उसमें क्या था कि स्टेट कमीशन में हम लोग जो मॉनिटरी देखते थे ना जुरिस्डिक्शन लेवल पे, हम कब स्टेट फोरम में कंप्लेन करेंगे, तो वो 20 लाख टू 1 करोड़ के बीच में होता था। यू आर गेटिंग इट? डिस्ट्रिक्ट फोरम में 1986 में 20 लाख के अंदर का केस हम रजिस्टर कराते थे, और फिर स्टेट फोरम में 20 लाख से 1 करोड़ के बीच का केस हम रजिस्टर करते हैं स्टेट फोरम में। इन 2019 वाला एक्ट इन डिस्ट्रिक्ट फोरम अप टू 1 करोड़ तक का लॉस हम डिस्ट्रिक्ट फोरम में डायरेक्टली जाके अप्रोच करेंगे, कंप्लेंट फाइल करेंगे, एंड देन इन स्टेट फोरम मोर देन 1 करोड़ टू 10 करोड़ के बीच में अगर हमें लॉस हुआ है तो हम स्टेट फोरम को कंप्लेन करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको कंपैरिजन समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ आपको? Yes, ma'am. हाँ, चलो नाउ लेट्स गो टू नेशनल कमीशन। मैं बताऊंगी आपको, अपील का भी बताऊंगी, कब आप अपील करोगे या फिर क्या आपकी लाइक टाइम पीरियड होगी जब तक आप सू कर सकते हो, वो सारी चीजें भी मैं बताऊंगी। सो नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल अबाउट नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन क्या होता है कि यहाँ पे भी एक इनका एक हायरार्की है, जिसमें कि अगर आपको मोर देन 10 करोड़ का कोई नुकसान हुआ है एज अ कस्टमर, तो आप डायरेक्ट नेशनल कमीशन में अप्रोच कर सकते हो या केस फाइल कर सकते हो। गेट इट? ये एक डिफरेंशिएट इन्होंने किया है तीनों फोरम्स में। एंड व्हेन यू गो टू 1986 वाला एक्ट, उसमें मोर देन 1 करोड़ जो होता था, कोई भी अगर आपके साथ घोटाला हुआ या कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, देन इफ दैट लॉस इज मोर देन 1 करोड़, then you can directly approach to national forum।
Are you getting it? So these are certain differences between 2019 Act and 1986 वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. ये बहुत कोर डिफरेंसेस थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं, और यही एक रीजन था कि जो मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस था जिसके लिए लोग सू करते थे, उसका एम्बिट हमारे 1986 वाले एक्ट में बहुत लिमिटेड था, लेकिन इस एम्बिट को 2019 वाले एक्ट में बहुत एग्जॉस्टिव बना दिया गया था. यू आर गेटिंग इट ना? आपको समझ में भी आ रहा होगा जिस से मैं आपको बताते जा रही हूँ चीजों को लेके. और 1986 वाले एक्ट में इस्टेब्लिशमेंट जब होती थी किसी भी फोरम्स की, अगर उसमें प्रेसिडेंट होते थे तो रेस्ट्रिक्टेड होते थे कि वो हाई कोर्ट जजेस होंगे या वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस होंगे या वो सुप्रीम कोर्ट जजेस होंगे. लेकिन 2019 के एक्ट में इस रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ा गया. कोई भी व्यक्ति जो एक पोजीशन होल्ड करता है, कोई अच्छा सा सेंट्रल में कोई एक ऑफिसर है या वो मिनिस्टर है, वो प्रेसिडेंट या चेयरमैन बन सकता है फोरम्स का, डिस्ट्रिक्ट का या फिर नेशनल का और स्टेट कमीशन का. नॉट टॉक अबाउट अपील. अपील का बहुत सिंपल फंडा है. चाहे डिस्ट्रिक्ट फोरम के जजमेंट से आप नाखुश हो या फिर आप स्टेट फोरम के जजमेंट से नाखुश हो या नेशनल कमीशन के डिसीजन से अनहैप्पी हो, हैप्पी नहीं हो, देन यू विल अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट फोरम से अगर आप नाखुश हो तो यू विल अप्रोच टू स्टेट फोरम. आप आओगे स्टेट फोरम के पास 30 दिन के अंदर. अगर आप स्टेट फोरम से नाखुश हो तो आप नेशनल फोरम के पास आओगे 30 दिन के अंदर. और अगर आप नेशनल फोरम से भी संतुष्ट नहीं हो, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ नेशनल फोरम, नेशनल कमीशंस, देन यू कैन go on appeal to the Supreme Court of India within 30 days. Get it? समझ आया आप लोगों को ये? Any questions still here? No, ma'am. Okay. Then there is another things also like limitation periods. मान लेते हैं as a customer, for example, तोशिबा ने एक आयरन खरीदा, ठीक है? Okay, ma'am. You and one boy is active और मुझे लगता है कि कोई किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है. ओके, डोंट टेक इट अदरवाइज. मैं सबका एक नाम करके एग्जांपल दूंगी. तो एक तोशिबा के नाम पे एग्जांपल है. तोशिबा ने कंपनी से एक आयरन खरीदा और वो आयरन खराब हो गया. उसकी वारंटी पीरियड 2 साल तक के अंदर की थी. अब तोशिबा को 2 साल के अंदर चेक करना था. ये तो जनरल है कि अगर आपकी वारंटी है, आपका आयरन खराब हो गया, अगर वो गारंटी पे है तो जिस टेन्योर के अंदर है उस टेन्योर में आपको फ्री सर्विस मिलेगी. Yes, ma'am. अब मान लेते हैं हम उस शॉप पे गए, हमने उसके साथ दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करा कि मैं आपको इतने पैसे देती हूँ, आप मुझे दूसरा आयरन न देके इसी आयरन को मुझे न्यू करके मुझे दे दो, ठीक करके दे दो. ये हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ. और अगर कॉन्ट्रैक्ट का किया तो मैं आपको कॉम्पल्सरी सू करती हूँ. तो ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बहुत ही ठीक है ना. ये पूरी एक बाइंग पर तो कॉन्ट्रैक्ट में बदल दिया क्योंकि हमारे पास वारंटी थी उस आयरन की. हमने उस वारंटी पीरियड को ठीक करा लिया. फिर से वो आयरन खराब हो गया. हम शॉपकीपर के पास गए, हमको कुछ पैसे की भैया मेरे आयरन ठीक करा के मुझे नया आयरन दे दो. और अगर तुम नहीं देते हो क्योंकि मैंने तुमको यहाँ पे पूरा अमाउंट पे कर दिया, और अगर तुम मुझे नया आयरन नहीं देते हो तो तुम यहाँ पे सारे जितने भी अगर कोई भी लाइबिलिटी होगी, कोई भी आपने गड़बड़ी करी, अगर आपने मुझे नया आयरन नहीं दिया तो यू विल बी द सोल लाइबल फॉर दैट एंड आई हैव द राइट टू सू यू फॉर द कॉम्पनसेशन. अभी जो सू का पीरियड है कॉम्पनसेशन का, तो आप उसको कब सू कर सकते हो? 2 साल के फ्रॉम द डेट ऑफ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. मान लो आज इस बंदे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा, मतलब उसने पैसे भी ले लिए और आपको आयरन भी वापस किया. अब आप या तो बीइंग अ वेरी अवेयर कस्टमर आपने नेक्स्ट डे ही सू कर दिया, लेकिन आपने सोचा चलो जाने देते हैं यार, 500-600 रुपए की तो बात है, कभी और सू कर देते हैं. तो आपने 1 साल बाद उसको सू करा, फिर भी वो वैलिड है क्योंकि आपके पास अभी 2 साल का टेन्योर है उसको सू कर. अगर आपने 2 साल बाद उसको सू करा उसके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कोर्ट पे होता है कि वो इस चीज को एक्सेप्ट करे और वो तभी एक्सेप्ट करके And your voice is actually breaking.
breaking. Like, it is audible, but there is little bit breaks in between. अरे I don't know what is happening. मेरी जगह की गलती है, sorry. I'm trying to do my best, but I don't know. अभी सही आ रहा है? ये अभी तो आ रहा है. Continue. हाँ, तो उस एग्जाम्पल में मैं ये समझाना चाह रही थी कि आपके पास एज अ कस्टमर 2 साल का पीरियड है आपके ब्रीच इंसान को उस टिकट को सू करने, या आपको कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होता है, बट एक्ट के अंदर आपको 2 साल का होता है। तो अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको सू करना चाहते हो फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या फिर सामान गलत देने के लिए, तो आप 2 साल के अंदर जाओगे कोर्ट में, ठीक है। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसको सू करना चाहते हो तो आपके पास 3 साल का टेन्योर होता है उसको सू करने का। यू आर गेटिंग इट? लिमिटेशन पीरियड होता है आपके पास। Yes, ma'am. Yes. तो आपको समझ आया? आप क्वेश्चन पूछो, आपको जितने क्वेश्चंस करने हैं, जितने माइंड में है आपके। नाउ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मैंने आपको एक ब्रीफ समरी एज अ काइंड ऑफ पढ़ा दिया है, क्योंकि ये बहुत एग्जॉस्टिव है। मैंने बहुत सारी चीजें कवर नहीं करी है, क्योंकि 1 घंटे में कवर करना इज नॉट पॉसिबल, बट मैंने कोशिश की है कि आपको कंपैरेटिवली कुछ कुछ चीजें मैं बता पाऊँ। तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ी चीजें समझ आई होगी, और आगे जब आप इसको पढ़ोगे ना अपने क्लासेस में, तो शायद आपको और ब्रश अप हो जाएगा, आपको तब चीजें और समझ में आने लगे। तो अगर आपके पास अभी कोई भी क्वेश्चन है तो जस्ट स्टार्ट इट, आई एम हियर टू आंसर एवरी डाउट। Ma'am, the question is regarding, let me take an example and ask you the question. Like, I have found some deficiency of service regarding electricity department or any such department. So, sooner I got to know about the deficiency, I have given a intimation or a kind of a notice to the department. So, I have approached the various authorities according to the hierarchy. Then at last I didn't got any solution. Then now I thought of going to consumer forum. So how does the limitation calculated? Is it from the date of giving the notice to the respective authority, or uh, or it is calculated at the date of lodging a complaint in consumer forum? डेट ऑफ लॉजिंग द कंप्लेंट। आपका क्वेश्चन क्या था कि आपने उसको एक नोटिस सू करा, राइट, कि इस प्रोडक्ट में डिफिशियंसी है, इधर आप इसको ठीक कर दो, नहीं तो मैं कोर्ट जाऊंगा, आपके अगेंस्ट कंप्लेन करूंगा, जो भी रेस्पेक्टिव फोरम्स होंगे उसमें। तो जिस दिन से आपको वो डिफिशियंसी आपकी नजर में आई और आपने उसको वो नोटिस सर्व करा, उस दिन से पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल बी काउंट। जब से आपको पता चला उसी दिन से तो आप काउंट करोगे ना। यू आर नॉट अ गॉड ना कि हमें पता भी नहीं और आपका लिमिटेशन काउंट हो रहा है, नहीं। the moment you getting aware of your deficiencies in the product, from that day your limitation will start. Are you getting? Yes, ma'am. It will end on the day when I have lodged the complaint with the forum, not on the day when I have given a notice to the respective authority. No, what you said to me कि मैम मैंने नोटिस सर्व करा उसको पहले, एंड देन आई रजिस्टर्ड अ कंप्लेन। आपने कंप्लेन अभी तक रजिस्टर करा है उसको? यू हैव जस्ट सर्व द नोटिस, राइट? Yes, ma'am. तो यहाँ पे अगर आपने कंप्लेन लॉन्च कर ही दिया तो आपकी लिमिटेशन की बात ही नहीं होती है ना। कंप्लेन तो आपने लॉन्च कर दिया ना उसको। आपका क्वेश्चन ये था कि आपकी लिमिटेशन पीरियड काउंट कब से होगी, एम आई राइट? Ma'am, on which date it will end? Like, let me give this example. From the date when I have known the deficiency, it's been 3 or... Yes, ma'am. Am I audible? Yeah, you are audible. Just a moment. I'm trying to make it a clear. I'm trying to understand your question. आपका क्वेश्चन ये है कि मैम लिमिटेशन कब से शुरू होगा, एम आई राइट? Am I right, Haridas? Your question is this, ma'am, when will be the limitation period will start? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'll just put it in other words. Like, ma'am, I have known that this particular service is deficient on some X day, and from that X day, within the time of limitation, I have served him a notice. Like, after the period, like after 3 or 4 years, that of me knowing the deficiency of service, I have lodged a complaint with the consumer forum. Is the complaint valid? Will they accept my complaint? After 4 years, you came regarding the deficiency of a service, right? Yes, ma'am. 3 or 4 years, yes.
लिमिटेशन का टेन्योर होता है 2 साल का, कब से? दैट्स ओनली आई एम ट्राइंग टू मेक यू कन्वे from the date you come to know regarding the deficiency in your product or service, the limitation will count from that day onwards. तो जिस दिन आपको पता चला 4 साल के बाद, ये तो आपको वैसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस है, कोई भी डिफिशियंसी 4 साल बाद किसी को पता नहीं चलता, बट अगर आपको पता चला है 4 साल के बाद, तो आप 4 साल के बाद से जिस दिन से आपको you came to know about the deficiency in your product, from that day your limitation period will start. You're getting it? Yes, ma'am. Like, yes, ma'am. I have got the starting point of the limitation period, but the ending point where can the date of me search to the authority shall be calculated on the day in which I have lodged the complaint. Like, what if I have served the notice within the limited time, but I have lodged the complaint after the limitation time? Haridas, you are confused in your own questions. If you have served the notice, which clearly means that you have the knowledge regarding the efficacy of the product. आपको तब तो the moment Voice is breaking. I can't hear your voice. माइक बंद करो, शायद No, I'm clear. My no. Wait. Hi. Hello. Yes, ma'am. It's audible now. So Yes, ma'am. Yes, you're audible. हाँ, हरिदास, make it very clear. सारे confusions को डब्बे में डालो. You said ना कि मैंने नोटिस सर्व करा. आपने नोटिस किस चीज की सर्व करी? डिफिशियंसी इन सर्विस की उस चीज की सर्व करी ना. It means you are aware of the deficiency of the product at that time when you have served the notice. तो उस दिन से आपका limitation period count हो जाएगा, no matter what. जिस दिन से, make it very clear, don't get into any confusion. The moment you came to know regarding the deficiency in your product, you came to know regarding unfair trade practice with yourself, उसी दिन से आपकी limitation period will start. बस इतना समझ लो. So आपका जो questions है ना hypothetical, कि 4 साल बाद मैंने complaint दिया and then on the same date मैंने notice file की. If you have filed a notice to other party or a retailer or a manufacturer, it means that you are aware of the deficiency of the product. So if you are aware of the deficiency of the product, which means that your limitation period will start. Now you can go and sue in the forum. District forum में अगर वो fall करता है, district forum में जाओ. State forum में fall करता है, state forum में जाओ. National forum में अगर वो case fall करता है, तो national forum में जाओ. क्योंकि आपको आपकी service, आपकी product की deficiency का पता है यहाँ पे. Simple, इसको इतना complicated मत करो. या तो Ma'am, I have a question. The consumer forum, there is a platform e-Jagriti. So in that particular platform, in the performer, there is this one heading is there, cause of action. So this cause of action, what will be the date we will consider this cause of action as the date? Like which date will be considered as the cause of action? Cause of action कब arise होता है? जब आपके साथ कोई ऐसा breach होता है. किसी, मान लो मैंने चप्पल खरीदी एक दुकान से, ठीक है, उस चप्पल की वारंटी पीरियड 1 साल की थी. अब वो चप्पल कल ही टूट गई. कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ? कल. Then it's very simple. Only whenever there is will be breach, that will be considered as a yes. Cause of action हमेशा उस दिन से शुरू होता है जिस दिन से आपके साथ कुछ गलत होता है या आपका ब्रीच होता है किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स को लेके या कॉन्ट्रैक्ट में. तो उस दिन से हमारा कॉज ऑफ एक्शन विल अराइज कि आपके पास अब राइट है, या तो आप वारंटी में जाके उससे पैसे मांगो वापस, या कोई नया सामान मांगो वापस. गो फॉर इट. कॉज ऑफ एक्शन का मतलब आप लोग क्या समझते हो? सिंपल शब्दों में बताओ मुझे. क्या, what is the reason for your action? Like for what reason you are taking this action? या तो क्या था, आपकी चप्पल टूट गई ना, किस दिन टूटी? भाई कल टूटी है, तो मैं कल का डेट डालूंगी ना कि कल के चप्पल
इसमें हम वाला डेट भी कंसिडर करेंगे जब मेरे को नॉलेज हुआ कि मेरे साथ कुछ ब्रीच हुआ है, तो उस वाली डेट की नॉलेज ऑफ द ब्रीच विल आल्सो कंसिडर इट। सिर्फ चप्पल टूट गई इसमें तो दिख रहा है, पर कोई चीज सपोज करो अपन इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अपन को कुछ टाइम बाद मालूम पड़ा कि मेरे साथ जो हुआ था वो टेक्निकली ब्रीच था, एक तरह से मेरा राइट था वो सर्विस लेना या फिर वो प्रोडक्ट को इस फॉर्म में लेना, तो फिर वो नॉलेज वाला डे कॉज ऑफ एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो बहुत ही ले मेल में मैं आप लोगों को एक चीज समझा रही हूँ, उसको एकदम कान खोल के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोई भी इंसान आप माइक म्यूट कर दो बच्चे। हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अगर आपके साथ कोई भी ब्रीच होता है, किसी भी तरीके का मैल प्रैक्टिस होता है, किसी भी तरीके का कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रहा है, किसी ने आपसे ज्यादा पैसे चार्ज कर लिए किसी भी सामान के, किसी ने आपको गलत सामान दे दिया, लिमिटेशन पीरियड और कॉज ऑफ एक्शन एक्चुअली दो अलग चीज है, लेकिन लिमिटेशन पीरियड उस दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन से आपको नॉलेज हो जाता है कि अब आपके पास राइट है इस इंसान को सू करने का। नॉलेज, आपको पता है इस इंसान ने आपके साथ ब्रीच किया है, इसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझो और दिमाग नहीं मतलब। कॉज ऑफ एक्शन भी तभी अराइज होगा जब आपको पता चल जाएगा कि आज मैंने जो सामान लिया है वो एक्सपायरी इसने मुझे दे दिया है, लेकिन मैंने उसको 5 दिन यूज कर लिया, छठे दिन मुझे पता चल रहा है, तो छठे दिन मेरा कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा कि मुझे आज के दिन पता चला। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, ऑब्वियसली कोर्ट ऑफ लॉ में आपको चीजें प्रूव करनी पड़ती है, ऐसे ही आप मुंह उठा के नहीं चले जाओगे, देखो भैया मैंने मिंत्रा से कपड़े मंगाए थे, फटा हुआ आया। कोई वीडियो है कि जब ये मिंत्रा का पैकेट आपने खोला ये फटा हुआ नहीं था या ये फटा हुआ था? आप प्रूफ देते हो ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। तो आपका कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होता है कि जिस समय आपने पैकेट खोला, अब आप कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा कि मैंने पैकेट खोला और मुझे पता चला कि ये जो मिंत्रा ने मुझे ये सामान अपने प्लेटफॉर्म से दिया है ये डिफेक्टिव पीस है, तो आप कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करो। अगर आपका मिंत्रा थर्ड पार्टी है, अगर वो आपका नहीं सुनता है, पहले तो हम मिंत्रा को अप्रोच करते हैं, एज ए कस्टमर वी अप्रोच टू मिंत्रा टू रिजॉल्व आवर डिस्प्यूट, टू गिव अस रिफंड और इधर रिप्लेस द प्रोडक्ट विद अनदर प्रोडक्ट। एंड इफ मिंत्रा विल नॉट हियर माय कंप्लेंट, देन हम डायरेक्टली कंज्यूमर फोरम जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन करने जाते हैं। किस दिन से? जिस दिन हमारे साथ ही घटना घटी, कॉज ऑफ एक्शन उस दिन से अराइज होता है और उसी दिन से आपका लिमिटेशन भी शुरू हो जाता है। 2 साल की लिमिटेशन पीरियड है, 2 साल के अंदर आप फाइल करो बस। इट्स वेरी सिंपल एंड सॉर्टेड, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये। अब आपके साथ कभी भी कोई अगर कोई खराब सामान दे देना, कहना है भैया सही करो नहीं तो मैं जा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन करने के लिए, वो डर जाते हैं। कभी करके देखो, दे गेट स्केयर्ड ऑफ दिस कि नहीं मैडम मैं कर दूंगा सही, डिस्ट्रिक्ट फोरम मत जाना, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट फोरम हमारा लास्ट रिजोल्यूशन होता है, लाइक हायरार्कीज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल फोरम्स। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Any confusion, any questions, ask me right now. Sneha, Navya, you people have no questions? एक बार कैमरा ही ऑन कर लो ना, I want to see your face, I'm your teacher. I will love to see my student face actually. अच्छा, कोई इंटरेस्टेड नहीं है ना? बिल्कुल मुझे तुम लोग मेरे कॉलेज की याद दिला रहे हो, when मेरे टीचर बोलते थे और हम लोग है मैडम बोलो, हम तो कैमरा ऑन नहीं करने वाले। कोई बात नहीं, बट आई एंजॉयड टीचिंग यू पीपल एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोगों ने मुझे अटेंटिवली सुना। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू योर नेम? यासिन। Ma'am, I have a doubt. If a person bought a washing machine after warranty period, he used to know there is some manufacturing defect in the washing machine, so he can't enjoy a certain program of washing machine. There are different types of programs in washing machine, right, ma'am? Like standard, wait. मुझे ये बताओ कि वारंटी पीरियड के बाद तुमको पता चला, मतलब तुम्हारा वारंटी पीरियड खत्म हो चुका था? हाँ, वारंटी पीरियड खत्म हो चुका था, वो 2 ईयर दिया था। कुछ नहीं हो सकता। वो प्रोग्रामिंग, वो सॉफ्टवेयर का एरर, वो यूजर से नहीं हो सकता है ना, वो मैन्युफैक्चर से ही हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता। देखो ये सब एग्जांपल्स हाइपोथेटिकल पूछते हो आप लोग जानबूझ के, आई अंडरस्टैंड। जब भी हम कोई प्रोडक्ट लाइक वी परचेज वॉशिंग मशीन और वी परचेज फ्रिज, कूलर, एसी, every product has their own warranty or guarantee periods,
and they specifically mention on that कि अगर आपका प्रोडक्ट इस टेन्योर में खराब होता है हम फ्री सर्विस देंगे, या कुछ डिफेक्ट होता है हम फ्री सर्विस देंगे। वो कभी नहीं बोलते कि हम आपको एक्सचेंज करके देंगे या फिर आप वारंटी पीरियड के बाद आओ और हमको सू करो। वो साफ शब्दों में लिखते हैं उसमें, इफ योर प्रोडक्ट गेट डैमेज और कोई ऐसा टेक्निकल इशू होता है उसमें, वो नहीं कि टूट फूट गया, नहीं, अगर आपकी मशीन खराब हो गई, कोई इंटरनल इश्यूज आ गए, तो यू कैन अप्रोच अस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अ वारंटी और अ गारंटी। इफ यू कम आफ्टरवर्ड्स देन वी विल चार्ज फॉर दैट। जो उनका अपना अपना ओन क्राइटेरिया होता है उनको चार्ज करने का। तो ये आपके ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ऐसे ही नहीं फॉल करेगा। लेकिन अगर आपने फ्रिज मंगाया और आपको आपने सुना होगा ना बहुत सारे एग्जांपल, हम आईफोन ऑर्डर करते थे, हमें अब 5 ब्रिक्स आ जाता था। इन सारे केस में यू कैन अप्रोच बिकॉज ये डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस के अंदर आता है। गेट द डेफिनेशन क्या बोलता है, किस किस चीजों में आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को अप्रोच करोगे, आप कंज्यूमर फोरम अप्रोच करोगे। अगर आपने कोई सर्विस मंगाई, फ्रिज मंगाया, आपको टेबल लैंप दे दिया, व्हाट इज दिस? दिस इज डिफिशिएंसी इन सर्विस ना, दिस इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना। You have ordered something else and you get something else. तो इसमें आप कंज्यूमर फोरम अप्रोच करोगे और उसमें जुरिस्डिक्शन देखोगे कि ये 1 करोड़ के नीचे का सामान है, 1 करोड़ के ऊपर का सामान है या 10 करोड़ के ऊपर का सामान है, कहाँ अप्रोच करना है। लेकिन जहाँ पे बात आती है फ्रिज की, वॉशिंग मशीन की एंड देयर टेक्निकलिटीज, एंड इफ देयर इज वारंटी मेंशन ओवर देयर, देन देयर इज नो एस्केप। यू कांट अप्रोच टू कंज्यूमर फोरम। बोलेगा आप भागो, घर पे बैठो भैया, हमारा सर मत खाओ, हमने डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस के लिए है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ना, बच्चे आप लोग एक चीज करना, अगर ऐसा कोई भी सवाल आपके मन में आता है, हमें हमारे टीचर्स ने नहीं बताया था, तो हमेशा डेफिनेशन पढ़ो उस एक्ट का। उस एक्ट के डेफिनेशन में क्या चीजें लिखी गई है, किस बात के लिए हम अप्रोच करेंगे कंज्यूमर फोरम को। अगर डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस है, अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ चार्ज हमारे किसी प्रोडक्ट के लिए लिया जा रहा है हमसे, और अगर हम अप्रोच कर रहे हैं और वो रिटेलर या मैन्युफैक्चरर नहीं मान रहा है, तो हम अप्रोच करते हैं कंज्यूमर फोरम को इन सब चीजों में। Manufacture defects comes under consumer. It's comes under consumer or definitely it's come, लेकिन वारंटी गारंटी अगर मेंशन है तब नहीं। Okay. क्योंकि वारंटी और गारंटी इसलिए ही दिया जाता है क्योंकि वो देखो ये भी होता है। फॉर एग्जांपल, इफ आई बाय अ आईफोन, आई हैव रेड वन केस जहां पे एक इंसान ने एक आईफोन ऑर्डर करा, आईफोन 16 आई थी फॉर 50 प्रो समथिंग, और विदिन अ 2 मंथ पूरा ब्लैक आउट हो गया वो। अब यहाँ पे ये नहीं कह सकती थर्ड पार्टी या फिर वो रिटेलर या मैन्युफैक्चरर कि भैया हम लायबल नहीं है, ये तो वारंटी पीरियड में, मे बी वो वारंटी पीरियड में हो, मतलब 10 दिन के अंदर ही ब्लैक आउट हुआ, उसको नया फोन देना पड़ेगा। आप डायरेक्टली या तो उनसे कॉम्पनसेशन मांगो मैन्युफैक्चरर से, और इधर आप अप्रोच करो कंज्यूमर फोरम को। यहाँ पे दोनों ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि अभी आप वारंटी के अंदर ही हो। लेकिन अगर आपकी वारंटी की 2 साल खत्म हो जाती है, तो यू कांट अप्रोच टू कंज्यूमर फोरम, क्योंकि वारंटी हैज बीन एक्सपायर्ड एंड इज एक्सप्लिसिटली मेंशन ऑन दैट कि आप वारंटी के अंदर मेरे पास आओ। वो कंज्यूमर फील किया है कि because of the update or because of the update given by the cell phone company, he used to get this error, or his phone is damaged because of the update. Then how can he approach by consumer court or by any other act? वारंटी के अंदर हुआ ना, विदिन 2 इयर्स हो गया ना। वारंटी के अंदर नहीं मैम, 3 इयर्स फोन का अपडेट होता है, 2 इयर्स वारंटी होता है। 2 इयर्स वारंटी पीरियड हो गई और 3rd ईयर ये एंड्रॉइड अपडेट आया, वो आने के बाद उसका फोन खराब हुआ। तो कंज्यूमर क्या कर सकता है? वो कंज्यूमर करेगा वो, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जाएगा वो कि देखो अभी मैंने नया फोन लिया है, 2 ही साल चला है, तो ये जवाब देना पड़ेगा। अब अगर उसने केस करा ना, ये अप्रोच, अब उसको समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे, तो दे विल डायरेक्टली अप्रोच टू कंज्यूमर फोरम। और कंज्यूमर फोरम को लगेगा कि इसका केस में दम है, देयर इज सर्टेन ग्राउंड्स जो कि कंपनी के साइड से ब्रीच किया गया है, तो कंपनी विल पे कॉम्पनसेशन। यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा, नॉट इन एवरी केसेस वी विल रिसीव वारंटी और गारंटी। समटाइम कोर्ट डू above these things also. Court can ask the company to provide a new phone or to provide free service to the people. क्योंकि 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर कोई फोन ब्लैकआउट नहीं हो जाता, या तो आपकी सर्विस खराब है, आपने गलत मटेरियल यूज किया है। एटलीस्ट 4 साल चलते हैं भाई, अच्छे से चलते हैं। वो हम ब्लैकआउट जैसा नहीं बोल रहे हैं मैम, वो सॉफ्टवेयर अपडेट आने से बाद वो कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन वो सब लॉस हुआ था।
ऐसा ऐसी सिचुएशन में कंज्यूमर फॉर्म में नहीं नहीं जाते, मतलब मोस्टली नहीं जाते, कुछ नहीं होना है, कंपनी बोलेगी सॉरी आई कांट डू एनीथिंग। बट हाँ, अगर कंज्यूमर जो कस्टमर है उसके पास सारे प्रूफ है, वो ये बता पाए कि मैं तो हर एक चीजें बहुत सही से कर रहा था, बट इसकी जो लाइफ है वो अभी बची है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि देखो ये टेक्निकल चीजें हैं ना, इन सब चीजों पे अगर हम कोर्ट को अप्रोच करने लगे तो हर 3 साल में किसी न किसी का मोबाइल खराब होता रहता है, तब तो हर कोई पहुंच जाएगा एप्पल और सैमसंग से कॉम्पनसेशन लेने के लिए ना। इसीलिए वारंटी बनाई गई है, गारंटी बनाई गई है इन सब चीजों को लेकर। physical damage consumer can agree, but it's a software damage I am asking about. It's nothing, no software damage, no physical damage. Physical damage तो वैसे भी वो entertain नहीं करेंगे। अगर software damage भी happens after warranty और guarantee, here the manufacturer is not responsible. तुम्हारा वारंटी गारंटी पीरियड खत्म हो गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो सॉफ्टवेयर डैमेज उसका अपडेट के बाद ही हुआ था, तो तुम जाओ उससे सर्विस लो ना, लेकिन पैसा तुमको पे करना पड़ेगा। Yeah, this is the law, बच्चे। then how can be consumer protected by the atrocities of company by giving that type of false update which can cause damage to the software of the product, and they want to deliberately did it because to buy a new item, phones will be slowed down, or laptops or anything will You be have slowed down used, at a certain time. wait a minute, you have used that phone for 3 years, right? Yes ma'am. लिमिटेशन कितने की है? 2 साल की। तुमने 3 साल का यूज कर लिया भैया, 3 साल लिमिटेशन 2 साल की नहीं मैम, क्योंकि 6 इयर्स का अपडेट को दे रहा है, क्योंकि आई विल से इट इन इंग्लिश में, they are giving 6 years of update because they think the user can use this for 6 years. He is giving 6 years update, but only But giving 6 years of warranty. it's okay बच्चे, they are giving the update for 6 years ना, but यहाँ पे कोई डेफिशिएंसी नहीं हुई है ना उसके साथ, कोई माल प्रैक्टिस तो नहीं किया है ना। माल प्रैक्टिस से होता है ना मैम, क्योंकि कैसे हुआ? कैसे वो Definition अपडेट दिया है। डेफिनेशन पढ़ो, माल प्रैक्टिस की डेफिनेशन क्या होती है? कंज्यूमर एक्ट में डेफिनेशन पढ़ो। व्हाट डू यू मीन बाय माल प्रैक्टिस? व्हाट डू यू मीन बाय डेफिशिएंसी? व्हाट डू यू मीन बाय डिसीट? कुछ हुआ है इसके साथ? 3 साल उसने यूज किया, 6 साल सॉफ्टवेयर मतलब दिया था, 6 साल फोन चलेगा, चौथे साल में अपडेट लेना बंद कर दिया। इट्स हैपेंड विद एवरी फोन। तो ऐसे एवरी कस्टमर विल अप्रोच टू द कोर्ट ना, देन देयर विल बी अ हैवॉक ऑफ केसेस ऑन द जजेस एंड द कोर्ट। तो फिर कंज्यूमर एक्ट के ही केसेस हम देखते रह जाएंगे। That's why I'm trying to make you convinced कि इसी वजह से वारंटी और गारंटी पीरियड बनाए गए हैं। वारंटी गारंटी पीरियड इज ओके मैम, आई एम आस्किंग दैट। I am understanding तुम्हारा क्वेश्चन कि 3 साल से ज्यादा क्यों नहीं चला वो सॉफ्टवेयर, क्यों अपडेट लेना बंद कर दिया? तो कुछ टेक्निकल इशू है, तो जाके आप जो आपके सैमसंग का जो भी शोरूम है या फिर जो भी है, आप जाओ उसके गैजेट्स में जाके दिखाओ कि मेरे गैजेट को क्या हुआ है, आप ठीक करके दो। सिंपल, इसको एक्सैजरेट मत करो। अब आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आई नो, बट ये सब बीटिंग अराउंड द बुशेस है बच्चे, आपके मन में आ रहे हैं, बट ये सब कंज्यूमर एक्ट में फॉल नहीं करेगा। इसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस वो फ्रॉड होता है ना मैम, कंज्यूमर के साथ फ्रॉड है ना मैम। वो कैसे, वो सॉफ्टवेयर ऐसा ही दिया था, वो फोन का खराब करने के लिए वो सॉफ्टवेयर दिया था, क्योंकि उस न्यू फोन बाय करता है वो ऑप्टिमाइजेशन लेने के बाद। prove it in the court, then I will listen it to very carefully and very patiently, and I will give judgment in your favor. Prove it. As a customer you have to prove ना कि यार उसने जानबूझ के करा था। Yes ma'am. What we say is after before update we will take some selfies and we will use same phone, we will track complete data that can be tracked by the software in our phone. Later that we will, after taking that update, we again use the phone. There we can see a drop in performance, drop in battery, we can see drop in camera efficiency. This all comes under software optimization, where maybe I am from BTech background, I can I know you are very stubborn towards your questions and you are trying to make me convinced कि मैम इसको फॉल करा दो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, बट डियर ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर फॉल नहीं करेगा। हाँ नहीं, मैं आपको कन्विंस नहीं करना चाहता हूँ। आप जा सकते हो, मान लो आपने सर्विस प्रोवाइडर को उसके पैसे दिए, आपने अपनी तुरंत से जाके उसको बोला कि भैया मेरा फोन में ये इशू है, आप ठीक करके दे दो, पर जैसे उसने अपडेट करके दिया
फॉल करेगा, उस रिटेलर के अगेंस्ट फॉल करेगा, या जिसने आपको सर्विस प्रोवाइड किया उस मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट फॉल करेगा। लेकिन डायरेक्टली सैमसंग कंपनी या आईफोन को नहीं आप इसमें घसीट दोगे, क्योंकि उनका काम खत्म हो गया आपको देके, उसकी वारंटी पीरियड खत्म हो गई। अब जो आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहा है ना, जो आपको डेफिसिट दे रहा है सर्विस में, जो डेफिशिएंसी कर रहा है आपके साथ, आप उसके अगेंस्ट फाइल करो, आप कर सकते हो, आपके पास राइट है। सर्विस सैमसंग ही दे रहा है ना मैम। मैं फिजिकल सर्विस को नहीं बता रहा, कंपनी ही अपडेट्स, सॉफ्टवेयर अपडेट्स कंपनी ही देता है, 6 years or 2 years or 3 years. Certain software is updated by the company itself, not by the manufacturer or not by the retailer or by any other service party. It is by the company. Then company have to take the measures that after giving their update, their phone must be like before how they are using, like that only. There must be optimization. Update means giving something better than before. They are optimizing something better, but after updating it become worse. It's not working properly, battery is draining, very heavy battery draining is there, and camera is not working properly, or buttons which are lagging behind, and sometimes network issues are there because of that update. What's your good name? My name is Anantala Venkatagiri Kausura. Anand. May I call you Anand? Yeah. Anand, I'm getting it. You are very curious about your questions and I want the answers. So you answered with that from my side. आपको ये जवाब मिलेगा कि जब ऐसे situations होते हैं ना, तो ये बस एक लोगों का केस नहीं होता. There are millions of people who all are facing these issues. And if every company will start taking these complaints ना, तो फिर उनके लिए तो फोन बनाना और बेचना ही मुश्किल हो जाएगा. That's the reason. वो मुश्किल है, फिर भी वो दिया तो डेफिशिएंसी इन सर्विस है. 6 साल का आपका अपडेट है सॉफ्टवेयर का, उसने दिया है ये चीज, बट उसने ये भी बोला है कि अगर 2-3 साल के अंदर अगर आपका फोन कुछ भी होता है तो हम टेक केयर करेंगे, उसके बाद की गारंटी हम नहीं लेते. चाहे आपका फोन अपडेट लेना बंद कर दे, कुछ भी करे, ये उसने मेंशन किया है ना भाई, आपने वही देख के परचेज किया है ना. then how to control the atrocities of it? Let me complete, maybe you will get your answers. अगर उसने ये मेंशन नहीं किया होता, तब जाके आप उसका सर फोड़ो, उससे कॉम्पेंसेशन मांगो, उसके अगेंस्ट सूट फाइल करो, डिस्ट्रिक्ट में, नेशनल में, स्टेट में. लेकिन if they are mentioning the warranty and guarantee periods and every other explicit thing on their products, then afterwards any mishap happens with you, the company will not be liable. And company liable होगी if there is genuinity in your complaint. अगर कुछ जेन्युइन कंप्लेंट होंगे, ऑब्वियसली कंपनी लायबल है, तभी तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया है ना. लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत हाइपोथेटिकल है बच्चा. इस क्वेश्चंस में कंपनी कहेगी भैया कान पकड़ता हूँ, आप जाओ, फोन मत खरीदो. No ma'am, it's not hypothetical question. Actually, last year many of people faced a similar situation by OnePlus company. There is a blue line error after you are complaint, right? You are facing this kind of issue, you are filing complaint. Where you are filing complaint? बताओ. Before filing company, OnePlus company itself gave an update. They just offered a free mobile screen replacement. करते हैं ना, आपको आने की जरूरत पड़ रही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन. But if not given by the company, if we think that companies have not given that. Listen, if company will not provide as per the legislation, then you can approach consumer forum कि ये liabilities थी कंपनी की, they are not providing the service. तब वो deficiency of service में आ गई. ये तो मैं आपको समझा. Deficiency of service में आ रहा है. Yes, mark this word. अगर ऐसी चीजें आती है तो ये deficiency of service के अंदर आप consumer forum में complaint फाइल कर सकते हो. Even after warranty period. Even after warranty period. Yes, even after warranty period. Yes. Yes. That's my. I got the answer, ma'am. May I rest here, my case? And the other thing is, legal charges will be covered by the court, ma'am. Once if we got a representative for us in court, then legal charges will be paid by the. Initial period में तो you have to pay every charges, but when come in your favor, then every charges, legal charges, trauma charges, whatever charges you may demand, that company will pay you everything. Okay. Or person can himself appear in the court, ma'am, without lawyer. He can. Do he have right to appeal directly in consumer court without an advocate? Yes, in person
you may approach. There are rights for every individual. If you can't afford lawyers, then you will provide it by free legal aid. मतलब through free legal aid, you will provide by the lawyers. Or if you wanna go in person, you can argue your case in the court. आप लोग देखते हो ना अभी वीडियोस में कुछ लोग जो लॉयर नहीं है वो भी आर्ग्यू करते हैं अपना केस, तो उनको भी राइट मिला है एडवोकेट एक्ट के अंदर, ये संविधान ने उनको राइट दिया है अपने केस को आर्ग्यू करने का. इन पर्सन आप आर्ग्यू कर सकते हो. इन पर्सन इज अ टर्म वी यूज इन दीज ऑल मैटर्स. तो आप अपना केस खुद लड़ो, नहीं तो अगर आप सक्षम नहीं हो देन द कोर्ट विल प्रोवाइड यू द एडवोकेट. गेट इट? Yes, ma'am. नाइस इंटरैक्टिंग यू, बट पीपल आर वेरी curious. Ma'am, as we all give a little introduction about ourselves, can we know about yourself, ma'am? Yeah, sure. What you are working and how your daily litigation work or some corporate law, how the work is going on? Yeah, so myself Maharani B. Bhamni. I'm an advocate in Jharkhand High Court. So I passed my exams, LLB, and then I did my masters also. So right now I'm currently preparing for judicial service examination, and then I'm teaching also because teaching is my passion. So I'm teaching people, and I'm doing co-litigation. I'm not here in corporate sectors and all. I'm doing co-litigation, and I got my placement in the college, but I left the job in between for pursuing higher studies. So that's all about me. And if you want to connect me, then connect me on Insta. If you will find my name, you will get it. Maharani B. Bhamni is my Insta ID also. So connect me there. And if you have any doubt regarding anything, I am there to help you. So I think Shambhavi, the class is over now. So will we sum up here? Yes, ma'am. Thank you, ma'am, for taking the time to share your valuable insights with us. Your expertise were truly enlightening. Thank you for breaking down complex concepts into easily understandable parts. We are grateful for your patience and willingness to answer the questions. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, and good evening, everybody, again. So bye.